Yes, Kirtan. So I would straight away ask Mr. Sunil Surana to join me. Basically, as the President sir has rightly said, that this topic has been a very important topic, specifically in the cases where, especially in the end period, probably in the month of June, where the transactions will be subject to TC, where the transactions, where the SSCs are making the sales and the considerations will be received in the next month, plus issues in relation to the softwares, issues in relation to constructions, whether they would be subject to TDS provisions, because You are not audible. Please oh, unmute yourself. sorry, maybe it was on. Hello. Mr. Sunil Surana does not require any introduction, as he has been the past president of our association. Plus, he regularly appears at various forums, including our association forum. Plus, he regularly appears in income tax appellate tribunal, CIT appeals. And as the president sir has rightly said, that this topic has been a very big important topic, especially in the case of transactions which are going to happen in the end of maybe in June, because there the transactions, whether because the considerations will be received post July. So a lot of SSCs are going to face this issue, whether TDS is required to be deducted or whether TCS will be there. Uh, big corporate houses are asking for declarations. What should be the format of these declarations? These issues are there. Plus, the different acts have issued given different definition of goods, especially like in case of softwares, construction items. These are issues which are always contentious. So I would request Mr. Sunil Surana to throw light on these issues, and then we can have question answer sessions to make to come to some sort of understanding on this topic. I request Mr. Sunil Surana to take over and start the discussion. Thank you, Ashish, my golf partner. And at the outset, I would like to thank our President N.K. Goyalji and Secretary DTP Rajesh Agarwalji for having given me this opportunity to initiate this group discussion. And without wasting of time, I would straight away like to go to section 194Q of the Income Tax Act, because this is more important section than 206C1H relating to TCS, for the simple reason that wherever this section applies, 206C1H will not apply, and it is not vice versa. So this section has to be given priority over 206C1H. So I will straight away go threadbare to discuss what is 194Q. I'll just briefly summarize what 194Q says. Any person being a buyer who is responsible for paying any sum to a resident, that's a seller, for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any... I request everybody to stay mute because it disturbs the rhythm of the speaker. So I request everyone to stay mute except the initiator, obviously. I think you can mute this Galaxy M30. Rajesh ji, can you please do so? So any person being a buyer responsible for paying any sum to a resident for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall, at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode, whichever is earlier, deduct an amount of equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax. So again, we have to go threadbare to each and every word used in the section. Any person being a buyer. So who is a buyer in this case? Buyer has been separately defined in the explanation to this section 194Q. It's stating that buyer means a person whose total sales, gross receipts or turnover from the business carried on by him exceeds 10 crores during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out. Not being a person, as the central government may by notification in the official gazette specify for this purpose, subject to conditions as may be specified therein. So who is a buyer? Whose total sales, turnover or gross receipts from the business carried on by him exceeds 10 crores in the preceding previous year. Now, first question that arises is,
whether the GST is to be included in such turnover, gross receipts, or sales. Now, there is no clarification given on this, but clarification has been given in other TDS sections that GST is not supposed to be included while calculating the limit of turnover in such cases. While calculating the limit of turnover of the buyer in the immediately preceding financial year, we will exclude GST component and then calculate the limit whether 10 crores is achieved or not. So that is one. And second, whose total sales, gross receipts, or turnover from the business carried on by him. Now, this business may consist of both sale of goods and sale of services. So although this section applies to 194Q applies to sale of goods, but while calculating the limit of turnover, that's the second most important thing, we will aggregate both the sale from goods and as well as sales from services. So these are the two more most important limbs of the definition of buyer as given in this section. Now I proceed. Any person being a buyer who is responsible for paying any sum to a resident. Now this section will only apply when you make purchases of any goods from a resident. So that means if you make imports of certain goods, in that cases where generally the buyer is a non-resident, in such cases the provisions of this section will not apply. Now again, another important aspect is for purchase of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year. Now this section has come into force with effect from 1st July this year. So a question arises as to since when the limit will be calculated. So the limit in such cases will be calculated from the beginning of the previous year, and that is from beginning of 1st April onwards. 1st April 2021 we will start calculating the limit. Although we are not liable to deduct tax under 194Q for the purchases made or the credit given till 30th June, but for the purpose of calculating the limits after 30th June, we need to see the purchases made from 1st April onwards. So this is another important aspect of this. So when these conditions are fulfilled from 1st July onwards, if my purchases during the year cross 50 lakh rupees, then I will deduct TDS at the rate of 0.1% from at the time of payment or credit, whichever is earlier, from 1st July onwards. For example, if I made purchases from say X of 40 lakh rupees till June, now I make fresh purchases of further 20 lakhs in the month of July. So I'll be liable to deduct TDS under section 194Q on 10 lakh rupees. That is because 50 lakh has already crossed and further exceeding 10 lakhs it is. So I will 60 lakhs minus 50 lakhs, 10 lakhs, I will deduct TDS on 10 lakhs rupees at the rate of 0.1%. Now, there is one most important aspect to this. This section has no applicability if the transaction is subjected to TDS under any provisions of this Income Tax Act. Now, any provisions means either 194C contract or any other provisions जहां पे TDS आप काट रहे हैं तब ये section applicable नहीं है, और जहां पे TCS applicable है, excepting 206C1H will be discussing which right now. तो जहां पे TCS provisions applicable है, ये section का कोई applicability नहीं है. हाँ, 206C1H जहां applicable है वहां पहले ये section आएगा, उसके बाद में 206C1H आएगा. So this is all about section 194Q, that is TDS. Now इसमें एक नया section आया है 206C AA-B. I'm sorry, 206C-AB आया है, वो भी 1st जुलाई से एप्लीकेबल है. इसमें ये कहा गया है कि if we are making purchases from a party which is a non-filer of for the immediately 2 preceding years, जिस साल अपने purchase कर रहे हैं. For example, we are making purchases on 1st July of say 80 lakhs. Now the party जिससे
the seller, if the seller has not filed the return of income for the immediately 2 preceding assessment years, for which the time of filing the return of income has already expired under 139(1), and the cumulative amount of TDS and TCS is more than 50 lakh rupees, in that case, I have to deduct tax at higher of the 3 rates. I repeat, अगर हम जिससे परचेज कर रहे हैं, आई एम द बायर, हम जिससे परचेज कर, आई एम द बायर, मैं तो जो सेलर है, अगर सेलर ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरी है पिछले 2 साल की, उन 2 सालों की जिसकी 139(1) की टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी है, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2021 को अपने जो परचेज कर रहे हैं, उसमें आप कौन से असेसमेंट ईयर देखोगे? दैट इज असेसमेंट ईयर 1920 एंड असेसमेंट ईयर 2021, बिकॉज उनकी टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। और उसमें ये भी कंडीशन अपने को देखनी है कि उसमें उस बंदे का टीडीएस और टीसीएस मिला के मोर देन 50,000 रुपीज था कि नहीं था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है और उसने फाइल नहीं की है रिटर्न, then they will deduct tax at the rate of higher of the 3 rates, which is rate specified in the relevant provision of the act, to the rates in force or at the rate of 5%. I repeat, rate specified in relevant provision of the act. For example, 194C में rate specified है 1% in the case of individual HUF, 2% in the case of companies. कई sections हैं जहाँ पे rate specified नहीं है. For example, payment of salaries, payment of जहाँ पे rate specified नहीं है. तो वहां पे अपने देखते हैं रेट्स इन फोर्स जो है, द रेट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 एंड 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, वो रेट्स हो गई है, और फिर एट द रेट ऑफ 5%। सो जो भी हायर होगा इन तीनों में से, आई विल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ हायर ऑफ द 3%, विच इज 5% इन सच केसेस। अगर 5% है तो 5%, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कमीशन का है, कमीशन में अगर रेट 5% होती है, तो अगर कमीशन नहीं, कमीशन इज अ सर्विस, सो आई वुड नॉट से कोई भी ऐसी चीज जिसमें रेट इज मोर देन 5%, तो वो रेट एप्लीकेबल होगी। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। नाउ इसमें आई वांट टू इनिशिएट कि किसी को कुछ पूछना है क्या, बिकॉज देन वी विल गो अहेड विद द अदर सेक्शन, दैट इज 206C1H। Hello, good evening, sir. हाँ, yes. Good, sir. Actually, your definition given by the section 194. You're not audible. Hello. Yes. Hello, now I'm audible. Yes. Yeah, you're audible. Sir, you are asking about the definition of section 194Q. That time you are saying about the 50 lakh. That Yes. is correct. I'm confusing because before 2 days I study about a 10 crore. No, that is 10 about crore, the say, हाँ. that is about the turnover which is sir was selling about. बायर किसको बोलते हैं आप? ये किस सेक्शन उस बायर पे अप्लाई कर रही है? उस बायर के टर्नओवर होनी चाहिए 10 करोड़ से बेसिक पिछले साल की। अच्छा। टीडीएस आप काटोगे उन ट्रांजैक्शंस पे एक्सीडिंग 50 lakhs जो व्हेन यू आर बाइंग फ्रॉम अ सेलर। अच्छा, जो सेलर से ले रहे हैं एक्सीडिंग 50 lakhs, तब उस पे आप टीडीएस काटोगे। वो ट्रांजैक्शन की लिमिट है। Okay, sir, I'm clear that. So I can proceed with 206C1H. Yes, sir. One question. Can I ask one question? Yes, please. Yeah, please. Sir, in case 206 AB, CAB, what you said, this section of 206 AB. हाँ. Yeah, और जो पैन जहाँ पे नहीं रहता अपना, that section 206 AA, I think. Right. Yes. So which will prevail? 20% or this will prevail? 206 AB में एक 206 AB के बारे में बता देता हूँ, which I just missed out. 206 AB ये बोलता है कि जहां पे जिस सेलर ने अपना पैन नहीं दिया है बायर को, उस केसेस में द रेट्स हायर ऑफ दीज 3 रेट्स टैक्स डिडक्ट होगा। रेट्स एज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन, रेट्स इन फोर्स और एट द रेट ऑफ 20%। हाउएवर उसमें एक एक्सेप्शन है, 194Q के लिए एक्सेप्शन है कि जहां पे 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और सेलर ने अपना पैन नहीं दिया है तो भी 5% ही एप्लीकेबल होगा। सो इन बोथ द केसेस, in 206 AA as well as 206 AB,
the rate is 5% in case either the seller has not provided his PAN number or the seller has not filed the return of income for the immediately 2 preceding assessment years. जिस assessment year में आपने वो credit किया है, the both the cases the rate is maximum rate is 5%. So this is only applicable for 194Q. Yes, जो PAN नहीं दिया है वो सिर्फ 194Q के लिए applicable है 5%. Otherwise बाकी sections के लिए वो rate है 20%. उसमें highest rate है 20%. 194Q के सिलसिले में सिर्फ 5% है. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. So anybody has any other views on this? We can still discuss, or these views are final. नहीं, बेसिकली तो सुनील, what the issue was is this कि अगर सामने वाले ने आपको पैन नंबर नहीं दिया है और प्लस एट द सेम टाइम में are the two sections coexisting together, or is it like mutually exclusive in terms of he, suppose if he is already provided you PAN, Yes. but he has not provided you declaration for the returns and all, in that Yeah, case, this- so if he has given so, ये जो question है, this has been taken care of by section 206 AB subsection 2. It states as under, if the provisions of section 206 AA is applicable to a specified person, in addition to the provisions of this section, the tax shall be deducted at the higher of the two rates specified in this section and in section 206 AA. So higher of the two rates में deduction होगा. That is 5%. it is in addition to, In na? addition to, हाँ, I know you are harping on the words in addition to. The Right. provisions of this section अपने उसको भी compare करेंगे, दोनों को compare करेंगे, और then the tax will be deducted at the higher of the rates of 5%. So that is mutually exclusive according to me, because this section has been compared to the section 206 AA. Because इसमें और कोई इतना व्यू हो सकता है क्या इसके अंदर में? I believe इसमें कोई क्लैरिफिकेशन का दरकार नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने को समझ लीजिए कोई जैसे 194Q तो एक इंडिपेंडेंट है, like filer of returns is applicable for all the sections in terms of कि if suppose I'm taking any contractual Yeah, service. just to interrupt you, I'm Ashish. just trying to हाँ, नहीं, I'm just saying, अब suppose लीजिए मैं कोई contractual services हाँ, right. कर रहा हूँ, हम्म, सामने वाले ने मेरे को पैन नंबर भी नहीं दिया, right. obviously at the same time में मेरे को उसका वो रिटर्न का कॉपी भी नहीं मिला, and I'm unsure वो मेरे को डिक्लेरेशन टाइप का भी नहीं दे पा रहा है कि उसका 50,000 से ऊपर का है कि नहीं, Right. because तो in that case 206 AA का भी जो TDS का स्पेसिफाइड रेट वो भी लगेगा, प्लस 2606 AB का जो रेट है जो उसमें स्पेसिफाइड है वो भी लगेगा, दोनों लगेगा या खाली एक लगेगा दोनों में? या इसमें खाली एक लगेगा, इसलिए बिकॉज उस बंदे का पैन नहीं है. अगर बंदा पैन नंबर दे ही नहीं पा रहा है तो रिटर्न कैसे फाइल करेगा? द होल लॉजिक इज दैट. तो अगर बंदे का पैन नंबर नहीं है तो इसीलिए उसको 0.1% करने के बजाय अपने 5% सीधा टैक्स कट जाएगा उसके ऊपर में. नहीं, वही बात है ना, तो फिर ये इन एडिशन टू का क्या रेलेवेंस हुआ? इन एडिशन टू, क्योंकि वो दोनों रेट को कंपेयर कर रहा है. नहीं, एक में रेट है एज पर नॉर्मल रेट, राइट. एक में रेट है ट्वाइस द रेट, तो इन्होंने नहीं. इन एनी केस एक 206 AA में क्या है, सिंगल रेट लिखा हुआ है एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल. राइट. सिंगल रेट दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है, तो दोनों सेक्शन में जो हायर रेट है वो हम लेंगे. ये सेक्शन बोल रहा है कि दोनों सेक्शन में जो हायर रेट है वो लीजिए आप. हो सकता है कि 206 AA में मेरे रेट 10% आ जाए, ओके, और 206 AB में मेरे रेट 5% रहे, तो मैं 10% लूंगा. और हो सकता है कि 206 AB में 10% आ जाए और वहां पे 5% आ जाए तो मैं 10% काटूंगा. ये बोल रहा है. बट दोनों प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों में से एक अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों में से जो हायर रेट होगी वो मैं लूंगा. ठीक है. तो मिस्टर सुराना, यस, हेलो मिस्टर सुराना, ये स्क्रैप के केस में क्या प्रोविजन करेगा प्रिवेल? 194Q और TDS प्रोविजन? सर 194Q अप्लाई नहीं करेगा स्क्रैप के केस में, क्योंकि आप TCS ऑलरेडी काट रहे हो वहां पे. काट रहे हैं. में लिखा हुआ है क्लियरली, जहां पे जो भी TDS प्रोविजन अप्लाई करेंगे या TCS प्रोविजन अप्लाई करेंगे 194Q नहीं लगेगा. लेकिन ये भी बोला है साथ साथ में, अगर TCS प्रोविजन सिर्फ एक TCS प्रोविजन को एक्सक्लूड किया गया है 206C1H, जो भी डिस्कस करेंगे अपने, अगर वो अप्लाई करेगा तो भी 194Q पहले अप्लाई करेगा, 206C1H अप्लाई नहीं करेगा. इसके अलावा कोई भी प्रोविजन में TDS आपको लग रहा है या कोई भी प्रोविजन में TCS लग रहा है, वहां पे 194Q की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. ये क्लियर है सेक्शन में. ओके. ठीक है. So now I can proceed with 206C1H, and then we will come to the general discussions or questions.
260(1)(h बोलता है एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर, अगेन इसमें सेलर का वही डेफिनेशन है, सेलर किसको बोलते हैं, वो सेलर जिसकी लास्ट ईयर, पिछले साल, आई मीन जिस साल में ट्रांजैक्शन कर रहे हो प्रीसीडिंग दैट ईयर, उसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो वो सेलर है। अगेन इसमें आप 10 करोड़ में जीएसटी काउंट नहीं करोगे, ये क्लियर है, ये इसमें कोई टू व्यूज नहीं है। सो एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव्स एन अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in any previous year other than goods being exported out of India, या जिसमें स्क्रैप का लग रहा है सेक्शन, मोटर व्हीकल का टीसीएस प्रोविजंस लग रहा है, या वो टूर ऑपरेटर वाला सेक्शन लग रहा है, shall at the time of receipt of such sum collect from the buyer a sum equal to 0.1% of the sale consideration exceeding 50 lakh rupees as income tax. So इसमें ये क्या बोल रहा है ये सेक्शन, ऑल्दो ये सेक्शन कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसके बाद में क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है, क्लैरिफिकेशन दी है सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 में। वो क्लैरिफिकेशन ये कर रहा है कि आप क्या करोगे, 260(1)(h एप्लीकेबल है कि नहीं है, आप कितना सेल ड्यूरिंग द ईयर किए हो नहीं देखोगे, कितना सेल पिछले साल किए हो नहीं देखोगे, कितना पैसा आपको डेटर से आया या कितना सेल का रियलाइजेशन करंट ईयर में हुआ, सिर्फ वही देखोगे। Although this section was applicable with effect from 1st October 2020, so अपने को बहुत careful होना पड़ेगा while doing the audit of our clients for this year, whether there is any violation of the TCS provisions or not. So we have to ensure that जो भी debtors है उनका 30th September तक कितना सेल था, I mean कितनी realization हुई थी उनसे। अगर मान लीजिए एक debtor है X, उसकी realization 30th सितंबर तक 40 लाख रुपीस हुई थी और 1st अक्टूबर 2020 के बाद में फर्दर 20 लाख हुई थी, तो मीनिंग 10 लाख पे सिर्फ अपने टीसीएस ही शुड कलेक्ट फ्रॉम द दैट बायर, प्रोवाइडेड वो 194Q में नहीं है। सो ये चीज बहुत ध्यान में रहे, इट इज ओनली ऑन रियलाइजेशन, 260(1)(h इज ओनली ऑन रियलाइजेशन ऑफ द सेल्स कंसिडरेशन, नॉट ऑन द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Second, certain sales have been excluded. For example, export sales, those have been excluded. और इसमें buyer के definition, इसमें वो भी सारी ये भी condition डाली गई है कि if the buyer is liable to deduct tax at source under any provisions of the Income Tax Act, तो भी ये section नहीं लगेगा। और इसमें buyer में 3 जनों को exclude किया गया है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, लेगेशन, हाईको, वो कॉन्सुलेट, जो फॉरेन जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है फॉरेन स्टेट के, उनको एक्सक्लूड किया गया है, लोकल अथॉरिटी को एक्सक्लूड किया गया है, और पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया उसको बायर के डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। सो दीज आर द ब्रीफ प्रोविजंस ऑफ 260(1)(h ऑफ द आईटी एक्ट जो अपने बात कर रहे थे। लेकिन इसमें जो क्लैरिफिकेशन आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों चीज है, 194Q और 260(1)(h, दे अप्लाई ऑन गुड्स, दे डोंट अप्लाई ऑन सर्विसेज। ये चीज क्लियर हो जाए सबको। अब सवाल आता है गुड्स किसको बोलते हैं। सो 260(1)(h के सिलसिले में गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन आई है, जिन्होंने उन्होंने गुड्स से क्या क्या चीज नहीं होगी इंक्लूड वो बताया गया है। गुड्स का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में कहीं दिया हुआ नहीं है। गुड्स का डेफिनेशन अपने को लेना पड़ेगा इधर फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट और फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विशमेंट है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट और सेल ऑफ और ये अपना गुड्स एंड सर्विसेज में कि जीएसटी में सिक्योरिटीज को, जो शेयर्स होते हैं, उनको एक्सक्लूड किया गया है, वेयरएज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है उनको उसमें इंक्लूड किया गया है। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने 260(1)(h के सिलसिले में क्लैरिफिकेशन निकाली है, जो मैं सर्कुलर के हिसाब से, उन्होंने ट्रांजैक्शंस इन शेयर्स डन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग हाउसेस, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 260(1)(h, और इलेक्ट्रिसिटी को भी एक्सक्लूड कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शंस को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो सवाल ये आता है कि जैसे नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं जो आप मतलब ऑफ द मार्केट आप डील करते हो, वेदर दोस आर गुड्स, अगर आप फ्यूचर में उसको परचेज करोगे
तो और या सेल किया है आपने, तो क्या आपने टीसीएस और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? आंसर इज यस। सो ये बहुत बड़ा ही एक ऐसा फीचर है जो मतलब कि सबके नजरअंदाज हो सकता है और नॉन कंप्लायंसेस काफी हो सकती है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल असेसिंग और ऑडिटिंग शेयर ट्रांजैक्शंस की यस इसमें प्रॉपर टीडीएस है कि नहीं है, बिकॉज टीडीएस के सिलसिले में अभी कोई क्लैरिफिकेशन आई नहीं है, बट वी होप कि गवर्नमेंट की सिमिलर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, बिकॉज ये अभी 1 जुलाई को एप्लीकेबल होगा और अभी वी स्टिल हैव गुड 2 weeks and 2 days टाइम गोइंग टू दैट 1 जुलाई। बट अभी तो गवर्नमेंट साइट ही काम नहीं कर रही है, तो वी डोंट नो कब तक गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन भी इसमें आएगी। और मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि द प्रोविजंस माइट बी डेफर्ड टिल 1 अक्टूबर, जैसे टीसीएस प्रोविजंस को डेफर किया गया था उन्होंने। सो दीज आर सम इंट्रिकेट इश्यूज। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्लैरिफिकेशन ये भी आई है गवर्नमेंट के वो सेल ऑफ मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग में कि 206C1H ये बोलता है कि जहां पे 206C1F एप्लीकेबल है, विच मींस सेल ऑफ मोटर व्हीकल के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं जहां पे टीसीएस काटते हैं सेल अबव 10 lakhs, तब 206C1H नहीं आएगा। बट इसमें दो चीज और ध्यान देने की बात है कि 206C1F was applicable on sale of motor vehicle to a consumer, B2B में एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल मारुति अपने डीलर्स को दे रहा है, मारुति गाड़ी बेच रहा है, तो उसमें टीसीएस प्रोविजंस 206C1F के एप्लीकेबल नहीं होते, पर उसमें अब 206C1H की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज वो सेल ऑफ गुड्स के दायरे में आ जाएगा इफ इट क्रॉसेस 50 lakhs। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड, ऐसे भी होता था कि कई बार जो कंज्यूमर को भी बेचते थे ना, तो वो 8 लाख 9 लाख की गाड़ियां बेचते थे या 7 लाख की गाड़ियां बेचते थे, और वो जो कंज्यूमर है वो ऐसी 10 गाड़ी खरीद लेता था, तो उस केस में भी वो प्रोविजंस ऑफ 206C1F को एस्केप कर जाता था। तो उसको भी अपने दायरे में लाने के लिए 206C1H के एप्लीकेबिलिटी में अब वो आ जाएंगे। सो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा जो क्लैरिफिकेशन में आए हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, क्लैरिफिकेशन में ये आया है कि आप जो सेलर से जो पैसा आ रहा है आपको, उसमें जीएसटी कंपोनेंट भी होगा, तो क्या उस पे 0.1% होगा कि नहीं होगा? गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन के रूप में ये दिया है कि हाँ, उस पे भी आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ द सेलर और बायर, कि वो सेलर और बायर के डेफिनेशन में आ रहा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट्स इन द प्रीसीडिंग ईयर्स, वो जीएसटी उसमें नहीं घुसेगा, टर्नओवर के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, पर वेयर व्हाइल कैलकुलेटिंग द रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर्स we have to include the GST component। ये इसलिए किया गया है just to avoid harassment या की confusion कि how will the buyer come to, I mean the seller come to know कि कौन से 12% GST सेल के अगेंस्ट में इसको पैसा मिला है या 18% GST सेल के अगेंस्ट में पैसा मिला है, वो कैसे बाइफरकेट करेगा अपने आप को। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया है कि इवन द GST पार्ट में भी अपने को TCS 0.1% करेक्ट करना पड़ेगा। सो विद दिस आई वुड, अगर किसी को कुछ क्वेरी है सो आई विल आंसर, अदरवाइज आई कैन गिव यू वन नाइस एग्जांपल। आई विल शेयर माय स्क्रीन, जिससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा अबाउट टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस। किसी को कुछ पूछना है और शैल आई गो टू स्क्रीन शेयरिंग स्ट्रेट अवे? सर जैसे लास्ट ईयर 50 लाख कंसिडरेशन क्रॉस होने के बाद हमको टीसीएस चार्ज करना था, तो करंट ईयर में भी मतलब हमको कैसे देखना होगा फॉर द ईयर 21-22? करंट ईयर में सर पिछले साल को भूल जाइए, पिछले साल का आप टर्नओवर देखिए पहले। तो करंट ईयर में अगर आप जून तक की बात कर रहे हैं, अपने जून तक पिछले साल का आप टर्नओवर देखिए, पिछले साल का आप टर्नओवर 10 करोड़ था कि नहीं था? अगर 10 करोड़ से ऊपर था आपका एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तब आप सेलर हो गए इस साल भी। ठीक है, मैं खाली अप्रैल में जून की बात कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जुलाई। सो और फिर उस पार्टी से अगर आपका अप्रैल में जून में रियलाइजेशन 50 लाख से ऊपर का है, तो आप टीसीएस आप कलेक्ट कर लोगे 0.1%। ओके, थैंक यू। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे अपने बात कर रहे हैं सेल कंसिडरेशन जो रिसिप्ट होता है उसके बेस पे अपने टीसीएस चार्ज करेंगे, राइट? बट इन मेनी कंपनीज जहाँ पर मैंने किया है या जो भी देखा है मैंने, हाँ, उन लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? उन लोग कर रहे हैं जो उनका जो ड्यूरिंग द ईयर जो सेल हुआ है, जब हाँ। 50 लाख क्रॉस होता है, उसके बाद जितने भी बिल वो करते हैं उसमें वो 0.1% वो अपना टीसीएस चार्ज करते हैं। तो वो क्या मतलब? वो गलत है, वो गलत है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आ गया है
सेल्स आप कितनी कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, डजंट मैटर एट ऑल. सेल्स आप पिछले साल कितनी हुई थी, डजंट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स इज करंट ईयर में कितनी रियलाइजेशन हो रही है. इफ उस पार्टी से बिकॉज ये ट्रिगर कब होता है ये आपको ध्यान में रखने का है. When does these TCS provisions trigger? They trigger on the realization of the sale proceeds, not on the sales made to the parties. Okay. That is very important. So जैसे ही आपकी realization 50 लाख क्रॉस करेगी, आप 50 लाख से TCS जो भी है, जब भी जैसे जैसे पैसा आता है, आप TCS पार्टी को स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी. विद इन 30th of this month आपने डेबिट किया बायर को उस 0.1% से, और उसके 7 दिन के अंदर आपको TCS जमा करना पड़ेगा. So the same thing will be applicable. The same thing will be applicable in case of TDS provision. अच्छा, अभी yes, the same thing will be applicable in TDS provisions. लेकिन 1 जुलाई के बाद में, इस साल के 1 जुलाई के बाद में, पहले आप ये देखोगे कि उस सेल पे TDS चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर उस सेल पे TDS चार्ज हो गया है, तब फिर 206(c)(1)(h) TCS का कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है. इसीलिए अभी राजेंद्र सेठिया जी ने जो अभी सवाल किया था, वो मैंने खाली फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए बताया था. जुलाई से मैं पहले ये देखूंगा कि पहले बायर ने उस पर TDS काटा है कि नहीं काटा है. अगर बायर ने TDS काटा है तो फिनिश, मैं 260(1)(h) में मेरी TCS से कोई लायबिलिटी नहीं है. सो बिकॉज 194(q) की एप्लीकेबिलिटी 1 जुलाई से है, इसीलिए 260(1)(h) फुल फोर्स में अप्लाई करेगा टिल 30th जून दिस ईयर. अच्छा, किसी से पार्टी से जैसे परचेज और सेल दोनों है, उसके क्या हाँ. नेट कंसिडरेशन बेस करके ही अपना ये कटेगा क्या TCS? सर इसमें अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट इसमें यही एडवाइजेबल है कि आप TDS पे, अगर TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल है तो पहले TDS काटिए, आप TCS को भूल जाइए, एंड वाइस वर्सा लाइक दिस. मतलब कि आप नेट नहीं करोगे दोनों चीज को, क्योंकि अभी तक इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की. नहीं, इसमें पेमेंट तो अपने को जैसे पेमेंट का टर्म है ना कि पेमेंट मिलने से ही होगा, तो इस क्रम में पेमेंट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने जो परचेज किया उसे सेल एडजस्ट हो गया, तो पेमेंट कंसीडरेशन का क्वेश्चन एराइज नहीं हो रहा है. राइट, तो पहले आप ये देखोगे ना कि 194(q) की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं हो रही है. अच्छा, पहले आप वो देखो. अब 194(q) एप्लीकेबिलिटी की उसमें वो डीम पेमेंट माना जाएगा. वो जो आप एडजस्ट कर रहे हो उसको डीम पेमेंट माना जाएगा. और पहले आप डीम पेमेंट मानने के बाद में पहले आप ये देखो 194(q) अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर 194(q) में उसने डीम पेमेंट मान लिया है, TDS काट लिया, तो आपकी लायबिलिटी नहीं है. बट जो एडजस्ट किया बार्टर सिस्टम जो हुआ है वो डीम पेमेंट माना जाएगा, बिकॉज इसमें वर्ड ये यूज नहीं किया है कि पेमेंट बाय एनी अदर मोड, ये यूज किया गया है. एनी अदर मोड मींस इंक्लूड्स बार्टर आल्सो. द वर्ड्स यूज्ड आर पेमेंट बाय कैश, चेक, एनी अदर मोड. तो इसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. ओके, थैंक यू. अच्छा सर, 194(q) के अंदर में आपका GST इंक्लूड करके TDS काटना है कि नहीं? 194(q) में GST इंक्लूड नहीं करना है, आज के डेट में नहीं करना है. अगर कल को 2 दिन बाद में क्लैरिफिकेशन आ जाए तो अलग बात है. आज के डेट में इंक्लूड नहीं करना है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सिमिलर क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया था जुलाई सर्कुलर नंबर 23 ऑफ 2017. आप नोट कर सकते हो. सर्कुलर नंबर 23 ऑफ 2017 में गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन दिया है GST के लिए. मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. पैरा 4 है, रेलेवेंट पैरा 4 है उसका. मैं पैरा 4 ही पढ़ के सुना रहा हूँ. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of GST on services comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter 17(b) of the Act on the amount paid or payable without including such GST on services component. GST for these purposes shall include integrated IGST, CGST and SGST जो है वो है. So following the same analogy, TDS पे आप GST को include नहीं करोगे. लेकिन ये तो सर सर्विसेज के लिए है ना, गुड्स के लिए तो नहीं है. ये नहीं है गुड्स के लिए, बट एंटायर चैप्टर 17(b) के लिए यूज किया गया है. ये नहीं बोला कि ये सर्विसेज के लिए. ये एट सोर्स अंडर चैप्टर 17(b) ऑफ द एक्ट. ये देखिए, पेबल टू रेजिडेंट इज इंडिकेट सेपरेट, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर चैप्टर 17(b). तो TDS 194(q) भी अंडर चैप्टर 17(b) ही कट रहा है आपका. और द सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई. GST में कोई इनकम नहीं होती है. The why the government has done is because GST does not have any income component. That's why there's no requirement to deduct TDS on GST component. But TCS में उन्होंने इसलिए लाया because TCS में प्रॉब्लम होती है, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है. 0.1% वो खुदरा पेमेंट के लिए उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए GST के लिए वो क्लैरिफिकेशन लाया था. बट सुनील जी, इसमें जो कहा गया है 194(j) में कहा गया था कि GST will not be included in while deducting the TDS.
Okay, Right. but as per section 206, if you go through the Yes. 206, Yes. it says it includes GST also. So Wait. 190 कहाँ बोल रहा है सर? ये 206 मेरे सामने है. 206 में आपने अपने हाँ. जो रियलाइजेशन करते हैं, रियलाइजेशन इंक्लूड्स GST. Right. सर रियलाइजेशन इंक्लूड्स GST. यू आर Yes. राइट. Yes. वो TCS के सिलसिले में है और वो भी इसलिए है टू रिमूव दिस एडिशनल बर्डन ऑन की कैलकुलेशन बर्डन होगा इसमें. एक कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपने 12% भी सेल करी है, 18% भी सेल करी है, कौन सा रियलाइजेशन आया है. इसलिए गवर्नमेंट ने उसमें क्लैरिफिकेशन दिया है. बट वो TCS के सिलसिले में है. इसमें मोस्ट लाइकली क्लैरिफिकेशन भी नहीं आने वाला है बिकॉज इसमें चीज क्लियर है. TDS में कैनॉट इंक्लूड GST कंपोनेंट. TDS में क्लैरिफिकेशन अलग आएगा गवर्नमेंट का. हाँ. So I hope I'm clear कि while deducting tax at source, GST component will not be included. ये clear है, इसमें कोई confusion भी नहीं है. TCS separate issue, yes, you are supposed to take into account, but the same will not apply in TDS. That is only for the purpose of मैं इसमें गिरीश आहूजा साहब का भी यही व्यू है because मैंने आहूजा जी से स्पेसिफिक यही क्वेश्चन किया था. तो आहूजा साहब ने कहा था कि बिकॉज ही इज इन द पैनल ऑफ द गवर्नमेंट का जो रिकमेंडेशन पैनल है, आहूजा साहब उसमें ही है. और आहूजा साहब ने यही कहा है कि खाली वो डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए TCS प्रोविजंस में ये सेक्शन लेके आए, ये क्लॉज लेके आए हैं कि GST कंपोनेंट विल बी इंक्लूडेड व्हाइल मेकिंग पेमेंट ऑफ TCS, बट सेम विल नॉट अप्लाई अंडर TDS. Now, if shall I do some screen sharing? Some examples are there. Yes, you can share. Yeah. I think you have to disable the participant screen sharing, I think. I have make you post. Now you can share. आप कर सकते हैं सर, मैं आपको पोस्ट करना था. I think अभी भी वही आ रहा है. Host disabled. नीचे देखिए सुनील जी, शेयर स्क्रीन करके है. एक सेकंड. हाँ, शेयर स्क्रीन दबा रहा हूँ तो आ रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. बार-बार वही दिखा रहा है. Yeah, now I'm able to share the screen. Thank you so much. Are you able to view the screen? Yes, yes. ये बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मिला है. Month is April to June of 2021. B is purchased goods of 150 lakhs from S. Now applicability of section 194Q, and we are seeing whether 194Q or 206C 1H कब applicable है. Here 194Q is not applicable and 206C 1H is not applicable. Am I clear? किसी को confusion है first row में? First row में किसी को confusion है कोई? No. Or shall I proceed to the second row? Yes, Sunil, you can go ahead. It's clear. Yeah, April to June, B makes payment of 120 lakhs to S. 194Q is not applicable because वो आई provision ही 1 जुलाई से आया है. और इस केस में TCS 70 लाख में कटेगा above 50 lakhs. So इसमें भी कोई confusion नहीं है. Now I again go to row 3. 30th June को balance बचता है. Amount receivable by S from B is 30 lakhs. Now we go to the fourth row. July 21. B purchased goods of 20 lakhs from S. Now 194Q applicable हो जाएगा because मेरी पहले की purchase already 50 lakhs cross कर चुकी है. इसलिए 194Q apply कर जाएगा, पर TCS apply नहीं करेगा because 194Q apply कर गया. I hope I'm clear on this. फिर जुलाई को B ने पूरा पैसा दे दिया, जो भी बकाया पैसा था 50 लाख रुपीस से पूरा पैसा दे दिया. B makes full payment of 50 lakhs to S. Now 194Q is not applicable since TDS has already been deducted at the time of purchase of goods. अब TCS जो लगेगा वो खाली बैलेंस 30 lakhs पे लगेगा because that was not subjected to TDS. और TCS is not applicable और remaining 20 lakhs TDS उसमें already कट चुका था.
अगर ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया, so I believe that the TDS and TCS provisions are clear to all. कमल पार्वती से बोलना, एक बार फिर से बोलना है सुनील भाई। हाँ, कमल पार्वती जी बोलना, एक बार फिर से बताने के। नहीं, इसमें उनको कौन सा रो समझ में नहीं आया, सारा स्क्रीन उनके सामने ही है। कमल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। Because सुनील गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग भाई जी, क्या खबर? बस बढ़िया बाबू। अप्रैल टू जून में बी मेक्स पेमेंट ऑफ ₹120 lakh to S. Yes, right. 124Q is not applicable. Right. Because TCS provision applies only on 70 lakhs. On T70 lakh on receipt because the B Yes. makes payment. Right. Okay, the payment word is there. Okay. TCS खाली रियलाइजेशन पे है, इसीलिए खाली पेमेंट पे कटेगा, 70 लाख पे कटेगा। करेक्ट। मैं एक्चुअली वो पेमेंट की जगह परचेज पढ़ लिया था। हाँ। इसलिए कंफ्यूजन। ठीक। So I believe ये क्लियर है। Now I'll quickly brush through some questions. एक सेकेंड, I will brush through. Are the questions visible? Rajesh, your questions are they visible? Question is not visible. Okay, one second. Is it now visible? Yes. So I'll just quickly brush through these questions quickly. इससे क्या है कि पूरा रिवाइज हो जाएगा अपना TDS और TCS का पूरा रिवीजन हो जाएगा। Is 194Q applicable to purchase of capital goods like plant and machinery? No. Yes, it is applicable. It is applicable because ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन दूर करना बहुत जरूरी है। इसमें कहीं ये सेग्रीगेट नहीं किया कि इट शुड बी ऑन रेवेन्यू अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो सब्जेक्ट टू 50 लाख तो रहेगा ही ना। सब्जेक्ट टू 50 लाख है। ठीक। ओके, वेदर इट इज कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट, ये कहीं डिस्टिंग्विशमेंट नहीं है। करेक्ट। या बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, आपने बिजनेस से नहीं खरीदे, उससे कोई मतलब नहीं है। 194 इज एप्लीकेबल इन परचेज ऑफ एनी गुड्स। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, is buyer importing goods from outside India required to deduct TDS under this section? Now generally buyer जिससे import करता है वो पार्टी जो seller है वो non resident है, तो in that case TDS is not required. Correct. Now third question, whether tax is required to be deducted under 194 from the goods exported abroad. So when the buyer, in this case basically the buyer becomes non-resident, तो उस केस में वो applicable होगा नहीं। So we go to the fourth question, whether transaction in securities to stock exchanges shall be subjected to TDS under this provision. Now ये बहुत टेक्निकल चीज है। This point, question number 4 is very important for all of us. इसमें अच्छा डिबेट हो सकता है because same clarification 206 ही 1H में आ चुका है कि transaction in securities through stock exchanges will be excluded from the purview of the TCS provisions. Now उसमें clarification आ गया था, so we also hope कि similar clarifications गवर्नमेंट का आएगा, अदरवाइज ये बहुत हैवी हो जाएगा। I mean पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा अगर ऐसे ये TDS चालू हो गया इसके ऊपर में तो। So but the point to be seen is that what about shares of private limited companies? Whether आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के शेयर खरीद रहे हो, so उसमें भी TDS अप्लाई करेगा क्या? आंसर इज यस, अप्लाई करेगा। लेकिन लिमिटेड कंपनीज में जिसका एक्सचेंज के थ्रू होता है वहां पे आप किसका काटोगे? बिकॉज़ एक्सचेंज उसमें तो आप कंसर्न पर्सन को तो आप जानते ही नहीं हो ना जिससे एग्जैक्टली तो वही तो ना, वी होप दैट द क्लैरिफिकेशन विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस मैटर। बट बात हो रही है नॉन लिस्टेड सिक्योरिटीज की। अगर आप कोई लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो, यू नो अपने काफी लोग करते ही हैं ये,
सो उस केसेस में क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं? उसमें एट द सेम टाइम ये भी तो है ना कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस लाइक 90 जब मैक्सिमम जो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन टेक केयर कर रहा है. यू आर नॉट सपोज टू सी वेदर आपकी बिजनेस के लिए है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए. अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है तो भी 194 क्यों अप्लाई करेगा. ये सेक्शन में कहीं एक्सक्लूड नहीं किया गया है. दिस सेक्शन इज नोवेयर एक्सक्लूडेड, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक और चीज आती है, कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, शेयर इशू कर रही है, आप सब्सक्राइब कर रहे हो और कंपनी अलॉट कर रही है, क्या उसमें टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे? सो उसमें भी टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि दैट इज अ केस ऑफ अलॉटमेंट. अलॉटमेंट इज please unmute yourself. You are not audible. am I audible now? Yes. तो मैं था ना कि अगर कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उस केस में क्या टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई करेंगे क्या? बिकॉज वो इशू का केस है एंड द कंपनी अलॉट्स यू द शेयर, सो यू आर नॉट परचेजिंग द शेयर, बेसिकली इट्स एन अलॉटमेंट. सो उसमें टीडीएस प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे. 194 क्यू विल नॉट बी अप्लाई. बट आप शेयर्स किसी थर्ड पार्टी से कोई खरीद रहे हो, in that case 194 क्यू will apply. Listed shares bought in off market deals, that should apply. Going by the analogy of clarification issued in respect of TCS provisions, that should apply. Bhale listed ho, but if it is not transacted through stock exchange or through recognized clearing house, then the TCS provisions भी apply करेंगे. तो अगर वहां पे भी वो सेम क्लैरिफिकेशन अगर यहाँ पे पुट करें तो टीडीएस प्रोविजंस भी अप्लाई कर जाएंगे, टीसीएस नहीं करेगा उस केस में. राइट, थैंक यू. Unlisted securities from the unlisted securities basically which are about to be listing in the stock market. उसमें अप्लाई करेंगे बिकॉज मैं क्लैरिफिकेशन पढ़ दे रहा हूँ, 3 लाइन का क्लैरिफिकेशन है, ज्यादा नहीं है. इन केस ऑफ टीसीएस प्रोविजंस ये है कि in order to remove such difficulties, it is provided that the provisions of 261H shall not be applicable in relation to transactions in securities and commodities which are traded through recognized stock exchanges or cleared and settled by the recognized clearing corporation, including recognized stock exchanges or recognized clearing corporation located in International Financial Services Center. So उनको TCS के provision से exclude किया गया है. ये circular आया था 29 September 2020 को, 2 days prior to the date when the TCS provisions were applicable. So we also hope कि 2 दिन पहले TDS में भी ये same clarifications आ जाएगा, या तो TDS provisions defer होंगे या ऐसा clarification आना चाहिए, because ये securities market के लिए बहुत important clarification है. Sunil bhai, what about the turnover in this case? Suppose a company is having a turnover only from purchase and sale of the shares of recognized stock exchange through the stock market only, not from the off market. And they now deal in this unlisted shares or the shares of the private limited company. Will that turnover be considered as the turnover for this purpose? Yes, they will be considered, because turnover ये जो चीज है ये है कब TCS प्रोविजंस अप्लाई करेगा. आपको बायर की लिमिट और सेलर की लिमिट कैलकुलेट करने का अलग इसमें हिसाब है. इसमें ये भी है कि उसमें तो आप सर्विसेज भी कैलकुलेट करोगे, वेदर मेरा टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो सर्विसेज का भी टर्नओवर लूंगा जो कि जिसमें मेरा ना टीसीएस अप्लाई कर रहा है ना टीडीएस अप्लाई कर रहा है. बट अगर समझ लीजिए द बायर ऑफ द शेयर्स, द पर्सन हु इज लाइक वो उसको सारा को शेयर्स को अपना इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, तो इट इज नॉट हिज टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस ना. Now if it is an NBFC company, it is separate provision, but for a company which is not an NBFC company, right, and it is basically showing a shares of there's an investment, whether in that case, because the language of the section says turnover from the business, right, turnover होना चाहिए, वो investment दिखाएगा तो turnover नहीं हुआ मेरा. हाँ, so that's what I'm saying कि अगर business के केस में अगर कोई दिखा रहा है, नहीं मैं turnover sales का देखूंगा, shares की मेरी sales है उसका turnover देखूंगा. आप what you are talking about investment तो मुझे ऐसे नहीं देखना. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लाइक सपोज जैसे जो अभी कमल जी का क्वेश्चन था कि कमल जी का जो क्वेश्चन है ना, कमल जी का जो क्वेश्चन है उसमें अपने ये देखेंगे कि वेदर हिज परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स जो कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है कि ट्रेडिंग अकाउंट में. अगर ट्रेडिंग अकाउंट में है तो मेरा सेल ऑफ शेयर्स मेरा टर्नओवर हो जाएगा. राइट, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में है तब वो टर्नओवर नहीं होगा. बिल्कुल ठीक है.
I hope I'm clear. Irrespective of it is a whether it is a NBFC company or non-NBFC. Yeah, irrespective of that. Irrespective of that. वो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या शो करता है? Because लॉ इसमें बहुत क्लियर है. आपका इंटेंशन आप कैसे क्लासिफाई करते हो? आपका इंटेंशन क्या है एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल? आपका होल्डिंग पीरियड का वो क्या है? आपका डिविडेंड कमाने का इंटेंशन है कि प्रॉफिट कमाने का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो सब अपने पढ़े, उस हिसाब से अपने क्लासिफाई करेंगे. So that should not be any issue with that. Correct. Earlier the dividend incomes were exempted, and now the dividend income are not exempted. Will that dividend income will also be part of the turnover? Yes. अब टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जनरली डिविडेंड जो आता है वी ऑलवेज से इट इज अ बाय प्रोडक्ट और समथिंग लाइक दैट. सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप डिविडेंड इनकम को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो अपने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में. आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा रहे हो या उसको टर्नओवर का पार्ट दिखा रहे हो? तो मोस्ट लाइकली इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाओगे. सो डिविडेंड कैन नॉट बी टेकन एज पार्ट ऑफ द टर्नओवर इन माय हम्बल सबमिशन, बिकॉज ये सब बाय प्रोडक्ट्स है. इट्स नॉट पर से सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम बिजनेस. सो अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखा रहे हो उसको, तो फिर आपका तो आएगा नहीं. अगर उसको आप बिजनेस दिखा रहे हो तब आ जाएगा, टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा. भाई अगेन वही प्रॉब्लम है कि सपोज इट इज फॉर द एनबीएफसी कंपनी, उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है एंड दे आर अर्निंग द डिविडेंड, सो देयर प्राइम बिजनेस इज नॉट फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट इज फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशंस. तब टर्नओवर में आ जाएगा. सर 100% टर्नओवर का मतलब क्या आप उसको डिविडेंड को अपने टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए कैलकुलेट करोगे या नहीं करोगे? हाँ, जब आप उसको टैक्स ऑडिट की लिमिट के लिए करोगे, अगर सपोज लीजिए कि अगर बिकॉज ये तो क्या कि एक अगर उसको आप अपना बिजनेस करके दिखाते हो कोई भी एंगल से, तो चाहे वो अदर सोर्सेज में भी दिखाए हो, देन आई थिंक सो इट शुड बी पार्ट ऑफ द टर्नओवर. अगर आप उसको मेन ऑब्जेक्टिव ये कंपनी का डील इन शेयर्स एंड एवरीथिंग, right, so memorandum says that it is going to deal in shares and everything, so in that case I think so that should be considered to be on the same. yes, right. अगर आपका बिजनेस का पार्ट है, अगर आप उसको क्लासिफिकेशन वैसे कर रहे हो, बिजनेस का पार्ट दिखा रहे हो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में, सो आपका एवरीथिंग हैज टू बी सिनोनिमस. मोस्ट लाइकली अगर परचेज सेल का शेयर्स है तो डिविडेंड का पार्ट होगा, शुड बी काउंटेड इन ग्रॉस रिसीट्स, बिकॉज़ ग्रॉस रिसीट्स है तो ग्रॉस रिसीट्स में काउंट होगा. टर्नओवर का पार्ट तो नहीं होगा, ग्रॉस रिसीट्स में काउंट हो जाएगा. अग्री. इसमें एक और क्वेश्चन है, whether TDS to be directed on purchase of immovable property by a developer. So as we know that goods does not include immovable property, so TDS provisions will not apply. क्या भाव है? गोल साहब क्या चीज का भाव पूछ रहे हैं? Sorry. Actually, my son is with me. He was traveling. He probably put the question. I'll put myself on mute. Okay. अच्छा, फिर सुनील इस केस में तो क्या 194 आई भी आ जाएगा ना, 194 आई ये भी आ जाएगा ना. तो हाँ, वो इमोरल केस में 194 आई आ जाएगा. सो दैट उसमें 50 लाख सीखना पड़ेगा अपने को. 50 लाख के ऊपर में 194 आई विल बी एप्लीकेबल. सो वेदर TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के में केस में आ गया कि वो भी जैसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है. Whether TDS should be directed on purchase of software. Now इसमें एक recent decision है TCS का, टाटा कंसल्टेंसी का, कि when you purchase canned software, like off the shelf software, तो that will be counted as goods. So if it is canned software, तो वो goods होगा and will be liable to TDS. Now लेकिन सुनील इसमें मेरा मानने का है कि अगर आप वो देखोगे जो डेफिनेशन है 194J का, उसमें रॉयल्टी आया है, और जो सेक्शन 91 का जिसमें डेफिनेशन ऑफ ये टेक्निकल्स, ये जो एक डेफिनेशन दिया गया था इसका, तो उसमें ये बोला गया था कि सॉफ्टवेयर विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ रॉयल्टी एंड रॉयल्टी इज कंसीडर्ड अंडर 194J. So one can draw an analogy like अगर 194J में आ रहा था, that means it's a services, and if you are purchasing any software for the services, that means अगर रॉयल्टी वाला पार्ट में आता है, then it is automatically out of the TDS purview. रॉयल्टी अगर जो क्वेश्चन आता है वो तो सर्विसेज में आ गया, वो तो ऐसे नहीं कटेगा. वैसे भी अगर इंपोर्ट करोगे तो वैसे ही बाहर हो गया, क्योंकि वो इंपोर्ट करोगे वैसे बाहर हो जाएगा. एकदम राइट. इसमें आशीष भाई मेरा एक चीज ये है कि अगर बाई चांस अगर सपोज अपने किसी आइटम के ऊपर में पहले के प्रोविजंस के तहत में अगर अपने TCS या TDS का प्रोविजन अगर कर रहे हैं और वो
डोमिनेंस रखता है, मुझे पता नहीं, सुनील ज्यादा क्लैरिफाई करेगा, जैसे यही रॉयल्टी वाला, अगर रॉयल्टी में हम 194J में ऑलरेडी हम करते हुए आए हैं, तो इन दैट केस मेरा ये मानना है कि 194Q अपने को एप्लीकेबल नहीं करेंगे। हाँ, तो वही तो आशीष बोल रहा है ना कि जहाँ पे रॉयल्टी वगैरह आ जाती है, सवाल आ जाता है, तो दैट पार्टेक्स द कैरेक्टर ऑफ सर्विस। करेक्ट। तो वो वहां पे जे आ जाएगा जहां पे, तो ऑटोमेटिकली यू आर आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ 194Q। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर TDS is liable to be deducted on purchase of jewelry not connected with business. So I think ये ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया पहले कि अगर कोई भी चीज हो, वेदर ज्वेलरी हो या फॉर बिजनेस पर्पस या नॉन बिजनेस पर्पस, दैट डजंट मैटर। 50 लाख से क्रॉस किया, TDS काटना पड़ेगा अपने। Whether additional allied or out of pocket expenses from part of purchase value of goods, ये simple है, if these expenses can be segregated, like you can identify from the bill, तब कोई काटने का दरकार नहीं है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा, 194C वाला लग जाएगा। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो दैट विल बी पार्ट ऑफ द गुड्स, और उसमें TDS पूरा में कटेगा। Whether TDS has to be deducted on advance payment made to seller, yes, एडवांस में क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier उस पे लगेगा, तो एडवांस पेमेंट में लग जाएगा। Whether amount received as loan to a seller shall come within the ambit of this provisions, नहीं, लोन है तो it would not, the TDS provisions will not apply. Whether TDS tax has to be deducted on purchase of goods from one branch to another. सुनील एक सेकंड खाली, जो एडवांस पेमेंट है ओनली आफ्टर कंसीडरिंग कि पहले से वो 50 लाख का टर्नओवर कंप्लीट हो चुका है। राइट, एडवांस पेमेंट को भी आप मानोगे, एडवांस पेमेंट विल फॉर्म पार्ट ऑफ 50 लाख रुपीस फॉर कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ बायर। वो 1 अप्रैल से जो काउंट करना है अपने को, एडवांस पेमेंट को भी उसमें काउंट कर लोगे। हाँ, एक बार 50 लाख क्रॉस हो जाएगा तो सपोज पहला इंसिडेंट ही मेरा ऐसा होता है कि जब मैं 5 लाख का चेक दे रहा हूँ, हाँ, और बाद में जाकर के मेरा 50 लाख क्रॉस होता है, तो पहले वाले पे नहीं लागू होगा। राइट। नहीं सुनील, जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज लीजिए मैंने किसी को 1 करोड़ रुपए का एडवांस दे दिया है अप्रैल, बगल वाला बिल्डिंग सुनील, बगल वाला बिल्डिंग सर मैंने अप्रैल टू जुलाई के पहले किसी को 1 करोड़ का एडवांस दे दिया, और उसके बाद में मैंने परचेज किया मटेरियल, राइट, बोल लीजिए मैंने जुलाई 1 को मैंने परचेज कर लिया, राइट। इन दैट केस क्या सिचुएशन रहेगा? उस दैट केस ये एग्जैक्टली वही चीज है जो मैंने एग्जांपल में दिया था। 1 जुलाई से जो भी आप परचेज करोगे, फर्स्ट पहला रुपया में TDS काटना पड़ेगा। ओके, बिकॉज 1 करोड़ की लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी है, 50 लाख की लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ये आप कैलकुलेट करोगे 1 अप्रैल से, नॉट फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। लिमिट क्रॉस चेक करोगे आप 1 अप्रैल से, तो क्योंकि आपने एडवांस दे दिया, 1 करोड़ का एडवांस दे दिया, तो लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी है। सो तो अब फर्दर जो आप परचेज करोगे उस 1 करोड़ काटूंगा ये, हाँ, फर्दर जो उसके अलावा जो भी आप परचेज करोगे, अगर उसको डेबिट कर दिया, मतलब कि तो आपका कट जाएगा उसके ऊपर में। फॉर एग्जांपल सुनील भाई, आशीष का ये कहना है कि वो अप्रैल टू जून के बीच में 1 करोड़ रुपया का एडवांस दिया, राइट, और अच्छा उसी का ही माल खरीदा, हाँ उसी का ही माल खरीदा, हाँ। नहीं, उस केस में नहीं होगा, मैंने उसके बाद कुछ और खरीदा ही नहीं उस आदमी। हाँ, तब उस केस में नहीं होगा, बिकॉज जो भी आपने कांड करना था आपने 1 जुलाई के पहले कर दिया। हाँ, मेरा वही पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो आपने 1 जुलाई के उसके 1 जुलाई के बाद में कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई मिसइंटरप्रेटेड योर क्वेश्चन। इट्स ओके। फिर है कि वेदर टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड बाय परचेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच टू अनदर। इसमें ब्रांच इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स मैटर नहीं करता है, एक पैन से दूसरे पैन मैटर करता है। सो अगर सेम ब्रांच में आप कर रहे हो, मतलब अलग अलग ब्रांचेस में कर रहे हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल, उसमें कोई TDS प्रोविजंस नहीं आएगा, ना कोई TCS प्रोविजंस आएगा। व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ TDS? एक चीज मैं बता दूं कि जैसे TCS प्रोविजंस में भी वो एक क्लैरिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का कि जैसे GST ऐड उसमें इंक्लूड होगा, तो वैसे भी आप उसमें डिस्काउंट्स का या कोई भी डेबिट नोट का किसी का भी एडजस्टमेंट्स नहीं करोगे TCS प्रोविजंस में। सो सिमिलर एनालॉजी कैन बी ड्रॉन हियर इन द केस ऑफ TDS एज वेल। TCS के केस में सुनील एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आपको पेमेंट मिलता है। तो प्रैक्टिकली आपको वो पेमेंट जब एडजस्ट होकर के मिला, तो जो आपको नेट मिला वहीं पे TCS आ जा रहा है। बट यहाँ के केस में क्या हो रहा है कि अब मैं समझ लीजिए उसको कोई एस्केलेशन क्लॉज लगा देता हूँ,
राइट, मैं उस मटेरियल के अगेंस्ट में एस्केलेशन क्लॉज लगा देता हूँ, मैं उस मटेरियल के अगेंस्ट में उससे कोई भी चार्ज कर देता हूँ, या मैं फॉर दैट मैटर मैंने समझ लीजिए उसको कोई डिस्काउंट दे दिया. In that case, what will be the situation like? In terms of suppose I've sold a goods to, say example, I've sold a goods of 60 lakh rupees and मैंने उसको फिर 15 lakh का discount दे दिया. Hypothetical example, so it reduces from 50 lakh rupees, it comes to 45 lakh rupees. Then in this case, 60 lakh should be considered or should we consider 45 lakh? Can you come again? I'm saying कि अगर TDS के केस में सपोज लीजिए मेरा एक एग्जांपल है जिसमें मैंने समझ लीजिए उसको 52 लाख रुपीस का गुड्स बेचा, राइट, और फिर बाद में मैंने उसको 5 लाख का डिस्काउंट दे दिया, तो नेट में मैंने उसे परचेज किया 47 लाख रुपीस का मटेरियल. हाँ, So in that case, whether the gross 52 should be considered or should be considered 47? नहीं, इसमें क्या है, Because TCS के केस में तो क्या है कि जो सेलर है उसको 47 ही मिलेगा, हाँ, तो वो TCS का आएगा ही नहीं. टेल यू आशीष में क्या चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. 1 जुलाई को आपने परचेज किया 52 लाख का, राइट, तो आपने पार्टी को क्रेडिट कर दिया 52 लाख से, राइट, पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट तो कर दिया 52 लाख का, तो टीडीएस प्रोविजंस हैव ऑलरेडी ट्रिगर्ड इन योर केस. दैट इज ओके, ठीक है, तो अब इसीलिए आप वो कितना पेमेंट कर रहा है दैट इज इमैटेरियल. राइट, ठीक है, फेयर एनफ, परफेक्टली फाइन, ओके. अच्छा, if the seller has multiple units. Sunil ji, I have one question here. Yes. Question वो again on GST on invoice. Right. अगर अपने किसी बाहर से अपने परचेज करते हैं, अगर अपने 50 लाख रुपीस एडवांस में पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, तो जीएसटी का टीडीएस का प्रोविजन 194 क्यों ट्रिगर हो जाता है अपना एडवांस पे? Suppose later on the seller has raised the invoice of rupees 45 lakhs rupees, but we have already made the payment of 50 lakhs. Right. तो हमारा तो इंक्लूडिंग जीएसटी अगर जो भी है हमारा, अगर वो इनवॉइस 45 का आता है तो हम लोगों ने तो एडवांस पे टीडीएस काट लिया. हाँ, 50 आपने जो एग्जांपल लिया है तो 50 लाख से ऊपर ट्रिगर होगा ना अपना. हाँ, ठीक है. सो मैं सपोज कर रहा हूँ मेरा टीडीएस का प्रोविजन ट्रिगर कर चुका और उसके बाद मैंने 50 लाख रुपए एडवांस पेमेंट किया है. हाँ, तो whichever is earlier, पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier, what was earlier? मेरा प्रॉब्लम ये है, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने क्यों नहीं इसको जीएसटी का इंक्लूड करके टीडीएस काटे? नहीं, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हो. जब आप पेमेंट किसी को एडवांस पे करते हो, आप ये बोल के नहीं कर रहे हो कि मैं उसमें जीएसटी कंपोनेंट का भी है, मेरा इसमें वो जीएसटी कंपोनेंट भी है, वो आप बोल के नहीं करते हो. पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier पे टीडीएस प्रोविजंस ट्रिगर हो जाएंगे आपके. नंबर 1. नंबर 2, TDS provisions will not apply on GST. इसके लिए गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन है, कहीं ये नहीं बोलता है कि GST कंपोनेंट में TDS कटना चाहिए. Drawing the same principles from the other TDS provisions, although इसके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, drawing the same analogy और principle from other TDS provisions, इस पे GST पे TDS नहीं कटेगा. इसका दूसरा कारण भी है, सपोज ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट का नहीं आता, ये तो गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आ गया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए नहीं कटना चाहिए. आर्गुमेंट से कंज्यूम गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तो I can always argue before the CIT appeal, I can always argue before the ITAT that I am not supposed to deduct tax at source from the GST because GST is no income element is embedded in that. So I cannot be asked to deduct TDS on GST. ये सिंपल मेरा आर्गुमेंट रहेगा और I'll be on the winning side. वो तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन बाकी टीडीएस प्रोविजंस में दे दिया, सो ये भी इसमें भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, बट द लॉ इज वेरी क्लियर. While making payment deducting tax at source, GST component will not be taken into account. Okay. Thank you. Yeah. Mr. Surana, yes. Hello. Will it make any difference, the advance payment and advance against payment? Will it make any difference? Advance payment and advance... And advance against payment. Advance payment is supposed to be adjusted in the first coming bill, whereas advance against payment may be adjusted later with the convenience of the buyer and seller. Sir, advance against payment में आप पार्टी को पहले क्रेडिट कर दोगे, yes or no? Advance against payment separate list, there is separate letter, advance from that party, there is separate ledger. Maybe a separate ledger, but आपने पार्टी को तो क्रेडिट कर ही दिया है. Naturally. Provisions will trigger. Advance against payment में TDS provisions will already have triggered advance against payment. So advance payment is, अगर advance payment में at the time of payment उस समय TDS provisions trigger कर जाएंगे. हाँ, advance payment में भी trigger कर जाएंगे. Advance against payment में at the time of credit पहले हो गया, payment हुआ नहीं है,
उस समय प्रोविजंस ट्रिगर कर जाएंगे। तो पेमेंट में सेलर साइड है, जैसे सेलर साइड है, सपोज मैं सेलर और आप बायर है, तो सेलर एक्चुअली तो ये तो बायर को काटना है हिसाब से। तो हाँ, तो बायर को काटना है तो आप इसको क्रेडिट करोगे ना, सेलर को तो क्रेडिट करोगे ना आप। हाँ। तो सेलर क्रेडिट करोगे तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टीडीएस प्रोविजंस ट्रिगर कर जाएंगे। ठीक कर जाएंगे, तो काटना होगा। So there is one question. Sir, in case of we raise a debit note later on, whether TDS will also be debited at that time, ना? सर डेबिट नोट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, वही मैंने आशीष रस्तोगी जी का भी क्वेश्चन था पहले। डेबिट नोट क्रेडिट नोट का कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे आप, बिकॉज टीडीएस प्रोविजंस कब ट्रिगर करते हैं? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द बायर और क्रेडिट whichever पेमेंट टू द सेलर और क्रेडिट whichever is earlier. I understand you, sir. हाँ, तो बाद में उनका जो कहना है डेबिट नोट क्रेडिट नोट रेज कर रहे हो बाद में होता है। अगर एस्केलेशन क्लॉज कोई आएगा और उसके बाद में आप एक सेपरेट डेबिट नोट रेज करोगे, तो इन दैट केस जो बायर है वो सेपरेटली फिर टीडीएस काटेगा ना उस चीज के ऊपर में। हाँ, लीजिए मैंने डेबिट नोट रेज किया, मैंने मटेरियल बेचा, उसके बाद मैंने एक और फर्दर डेबिट नोट रेज कर दिया उसके ऊपर में, कोई भी रीजन से। If the debit note is on account of services, like suppose लीजिए freight का debit note होता है, तब फिर नहीं आएगा। डेबिट नोट इज अकाउंट ऑफ सर्विसेज तो फिर आएगा। हाँ, if the debit note is on account of say आप इंटरेस्ट देना पड़ेगा या कुछ भी इंटरेस्ट क्लॉज के लिए कुछ पेमेंट करना पड़ेगा आपको, सो उस केस में वो टीडीएस प्रोविजंस ट्रिगर नहीं करेंगे, बिकॉज वो गुड्स नहीं हुआ, दैट इज नॉट गुड्स। सो डिपेंड करता है क्या चीज का डेबिट नोट रेज कर रहे हो। इफ इट हैज रिलेशन विद द गुड्स पर से कि हाँ भैया माल डिफेक्टिव है मेरा इसीलिए डेबिट नोट रेज कर रहा हूं नया, तो वो अलग बात है, उस केस में वो गुड्स का पार्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गुड्स। बट अगर कोई डैमेजेस के केस में भाई इंटरेस्ट का कोई कंपोनेंट आ गया है, फिर कुछ वैसे डैमेजेस का आ गया, दैट इज नॉट गुड्स। नहीं, मेरे केस में सपोज गुड्स डैमेज निकल गया है, तो सब्सिक्वेंटली मैंने रिटर्न किया गुड्स को, उस समय तो टीडीएस पहले ट्रिगर कर गया था टीडीएस, दैट इज ओके, राइट। सब्सिक्वेंटली तो टीडीएस हैज टू बी रिवर्स। नहीं, वो रिवर्सल नहीं होगा, वो रिवर्सल नहीं होगा, दैट हैज टू बी, अगर वो रिवर्सल आप तब कर सकते हो जब आपके 1 महीने के अंदर में हो गया है। तो फॉर एग्जांपल कि आप तो आज व्हाट आई मीन टू से इज दैट टीडीएस प्रोविजंस कब ट्रिगर करेंगे आप ये देखो पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये तो क्लियर है इसमें। यस, ठीक है, बाद में आपका माल जो है वो गुड डिफेक्टिव हो गया, आप उसको रिटर्न कर दिए, उस रिटर्न करने की वजह से आपका जो वैल्यू है गुड्स का कम हो गया। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि वो रिटर्न कब किया आपने। सपोज आपने टीडीएस ऑलरेडी काट किया, आपने जमा दे दिया, करेक्ट, आपने अगले महीने टीडीएस ऑलरेडी काट के जमा दे दिया, उसके बाद में आपका गुड्स रिटर्न हुआ, करेक्ट, तो उस केस में टीडीएस ऑलरेडी आपने बायर को भर चुका है, बायर रिफंड ले लेगा उस केस में, राइट। टीसीएस के केस में क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा उस केस में। अब टीडीएस के केस में अगर आपके पास टाइम है कि भाई आप वापस रिवर्स कर सकते हो एंट्री को ताकि वो 50 लाख के नीचे आ जाए, तब तो आप कर लीजिए, वेल अहेड, गो अहेड। बट मेरे हिसाब से क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, इसमें क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन इज अवेटेड ऑन दिस मैटर कि अगर डेबिट नोट गुड्स का ही रिटर्न हो गया है तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट। टीडीएस रिवर्स करना मुश्किल है, टीडीएस को रिवर्स करना इज अ बिट लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लेकिन सर जितना माल परचेज किया था, लेकिन सर जितना माल परचेज किया था पूरा का पूरा रिटर्न हो गया और उसका क्रेडिट नोट बन गया, तो उसमें परचेज तो हमारी कुछ है नहीं, तो हम क्लेम किस अगेंस्ट पे करेंगे? आप रिटर्न रिवाइज कर दोगे ना अपना, आप रिटर्न रिवाइज कर दोगे। अब जब रिटर्न चार्ज की डेट में रिटर्न गया ही नहीं है, आशीष इसमें रिटर्न जाए नहीं जाए, अगर हम अगर सुनील भाई अगर हम अगला महीना का 7 तारीख के अंदर में अगर हम पेमेंट कर चुके हैं टीडीएस का, राइट, वो बोल रहे हैं, तो फिर ये रिवाइज नहीं होगा। भाई तो मैं बोल रहा हूं, इसमें रिवाइज नहीं होगा। सर आप एक चीज बताओ, नहीं फिर लॉजिकली एक चीज बताओ, अल्टीमेटली वो मटेरियल वैल्यू तो दिखाएगा नहीं सेल में, सामने वाला भी नहीं दिखाएगा, राइट। ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसल्ड इन इट्स टोटल। मैंने माल किसी से परचेज किया, मैंने उसको माल रिटर्न कर दिया, मैंने परचेज किया, मैंने उसको ऊपर में टीडीएस काट लिया, सब्सिक्वेंटली वो कोई भी रीजन से मटेरियल रिटर्न हो गया। अब आप बोलना चाह रहे हो कि बिकॉज मेरा वो 2 महीने बाद रिटर्न हुआ है, मैं तो उस ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स में नहीं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली वो भी उसको सेल नहीं दिखाएगा, मैं भी परचेज नहीं दिखाऊंगा, और मैं टीडीएस को खाली अपने बुक्स में क्लेम करूंगा। आई डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? ये हो जाएगा, तो इसीलिए clarification it will create lot of problem from 26A, right, exactly, yes, because
as because I'm citing one example. My transaction is only with one person. I have purchased or sold goods of 1 crore, and rupees 10 lakhs debit note has been issued by the party. My purchase will be 90 lakhs, whereas the TDS 26A will reflect the transaction of 1 crore. Then it may make lot of complication while making the assessment. सर ये वेट कीजिए, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन इसमें पक्का आना ही है. 2 दिन मतलब कि 2 हफ्ते वेट कर लीजिए, गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन इसमें आएगा, बिकॉज सिमिलर क्लैरिफिकेशन 206C 1H में आ चुका है कि वहां पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा. तो let us be optimistic. मोस्ट लाइकली अगर टैक्स पेमेंट हो चुका है, टीडीएस का पेमेंट अगर हो चुका है, उसको रिवर्स कराना मुश्किल है. बिकॉज इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि अगर सपोज क्लैरिफिकेशन नहीं आता है, आपने टीडीएस का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तब इन दैट केस बायर में टेक द सेलर में टेक द क्रेडिट ऑफ द टीडीएस, नो इश्यूज, और आपको रिटर्न रिवाइज करने की दरकार नहीं है. अगर आपने टीडीएस का पेमेंट भुगतान नहीं किया है, इन दैट केस यू कैन पास द रिवर्सल एंट्रीज. अगर क्लैरिफिकेशन आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो यू कैन पास रिवर्सल एंट्रीज, और आपको कोई इश्यूज नहीं है इसके अंदर में. I proceed to the next question. Can a seller apply for lower deduction certificate in that case under 197? वो नहीं कर सकता है. इसमें सेक्शन में कहीं ये लीवे दिया हुआ नहीं है कि the seller can approach the TDS authorities for giving certificate of lower deduction. वो कहीं दिया हुआ नहीं है. Will TDS under section 194Q apply to redemption of preference shares by a company? So again, preference shares, until unless clarification comes from the government, preference shares have to be taken as goods. Redemption of preference shares is comes within definition of transfer. Therefore, according to my view, 194Q will apply on redemption of preference shares, because preference shares जो redeem होते हैं generally listed recognized stock exchange through होते नहीं है. तो इसीलिए उसकी we cannot take help of the principles or the circular issued in the TCS context in that case. Again, will TDS under 194Q apply to buyback of shares by a company? Will such buyback amount to purchase of goods? Sir, in case redeemable preference shares have been redeemed to non-resident, in that case TDS will be applicable. Sir, non-resident पे तो ऐसे ही नहीं है, वो तो सेक्शन ही बोल रहा है. Exempted. Okay. तो सेक्शन बोल रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. बायबैक में क्या है कि बायबैक में सेपरेट टैक्सेशन है अपना. 1034Q में the redemption value of buyback is exempt in the hands of the shareholders. Company has to pay tax on 115QA. So in my view, TDS provisions buyback of shares में अप्लाई नहीं करेंगे, because इनकम टैक्स में स्पेसिफिक सेक्शन है जो. लेकिन एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है इसके अंदर में. वो क्वेश्चन ये है कि 194Q does not start with non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the provisions of the act. अगर वैसा होता तो अपने बोल सकते थे कि हाँ 194Q अप्लाई करेगा बायबैक ऑफ शेयर्स में. सो बिकॉज 115QA में और 1034 में सेपरेट टैक्सेशन है, सो बायबैक ऑफ शेयर्स में अप्लाई नहीं करेगा. फिर question number 18, company whose turnover is 12 crores in the majority proceeding buys 75 lakh capital goods from a supplier. The agreement with supplier is 1 lakh shares of the company whose fair market value is 75 lakh shall be allotted to the supplier as consideration. Is TDS applicable? ये same barter system हो गया जो अपने पहले डिस्कस किए थे आई थिंक. सो barter system पे भी लगेगा, because any other mode लिखा हुआ है वहां पे, इसीलिए barter system में भी लगेगा. Same with question number 19, loan question number 20 में अप्लाई नहीं करेगा. Question number 23 is important. ABC, a partnership firm, invoiced goods worth 60 lakhs to partners A, sole proprietorship business A and company, and debited partners capital account as drawings. The turnover of A and company was 12 crores in financial year 2021. ANC turnover in financial year was 70 crores. Is ABC liable to collect tax at source under 261H? Is A and B liable to deduct TDS under 194Q? Basically, this question has been framed कि 194Q अप्लाई करेगा और 206C 1H अप्लाई नहीं करेगा.
So ये उस कॉन्टेक्स्ट में बनाया हुआ था, which we've already discussed. So फिर स्टॉक इन ट्रेड पार्टनर को ट्रांसफर हो रहा है at the time of question number 24, at the time of retirement. उस केस में क्या TDS एप्लीकेबल होगा? We all know कि सेपरेट टैक्सेशन आ गया है 9B of the इनकम टैक्स एक्ट में कि where there is a reconstitution or a dissolution of a firm और पार्टनर को कोई कैपिटल एसेट या स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है, so in that case the firm has to pay tax on the difference of the value of the capital asset and the capital balance lying in the account of the firm, on the capital balance lying in the account of the partner. So अगर स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर हो रहा है तो TDS प्रोविजंस ट्रिगर कर जाएंगे. So A company will be liable to deduct tax under section 194Q in this case. We have already discussed whether a turnover of 10 crore will be exclusive of GST or not, how to calculate the limit of 50 lakhs, and provisions of 194Q applicable 194Q to 50 lakhs. ये सब अपने बाकी सब cases I think discuss हो चुका है इसके अंदर में. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहता हूं. Question number 34 is very important. Is there any other compliance required to be done by the seller? 261H. सेलर को जब मालूम पड़ा कि बायर 194Q में TDS काटा है, तो सेलर को क्या कंप्लायंस करना पड़ेगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेलर को एक रिटर्न, अपनी रिटर्न में 27EQ में इसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि बायर ने TDS काट लिया था, इसीलिए मैं नहीं काट रहा हूं TCS, मैं TCS कलेक्ट नहीं कर रहा हूं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर एक और सवाल आता है विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड कि 1 अक्टूबर के बाद में आप कौन सी 2 साल की रिटर्न लोगे सेलर से? 1 अक्टूबर 2021 के बाद में आप असेसमेंट ईयर 21-22 और 20-21 की रिटर्न की कॉपी मांगोगे, बिकॉज द टाइम फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ दोस 2 years वुड हैव एक्सपायर्ड बाय 30th सितंबर. और अभी शुरू के 3 महीने लाइक जुलाई, अगस्त और सितंबर आप असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 की रिटर्न मांगोगे अंडर सेक्शन 206AB. तो आप या तो आप उसका रिटर्न का कॉपी आप मांग सकते हो, अदरवाइज आपसे उससे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि यस यू हैव फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीसीडिंग 2 years. गवर्नमेंट भी एक सर्कुलर एक सॉफ्टवेयर ला रही है जिसमें पैन आप पंच करोगे उस पार्टी का, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वेदर द पार्टी हैज कंप्लायंट इनकम टैक्स कंप्लायंट एसएससी और नॉट. जैसे एमसी में अपने पता लगा सकते हैं कि कंपनी एक्टिव कंपनी है कि नहीं है, वैसे ही इनकम टैक्स में भी आपको पता लग जाएगा वेदर द पार्टी इज कंप्लायंट पार्टी और नॉट. उसने रिटर्न फाइल की है नहीं की है, उसके TDS कितने थे और TCS कितने थे, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. जैसे एमसी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, वैसे ही इनकम टैक्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. और वी होप कि ये इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते के अंदर आ जाए. सुनील भाई, नंबर 34 में एक चीज था, वो जो 27EQ में अगर वो अपलोड करना पड़ता है, देन इट विल बी ए वेरी मच हरकुलियन टास्क. एक तरह से वो तो होगा ही, वेरी मच हरकुलियन टास्क. In my view, with due respect, these provisions will not come into force with effect from 1st July onwards. सरकार को डेफर करना ही पड़ेगा. अभी सरकार पोर्टल नहीं संभाल पा रही है, इसको तो कोई हालत में नहीं संभाल पाएगी. मतलब ये पूरा केओस क्रिएट हो जाएगा मार्केट में. 1st जुलाई से सरकार को इसको डेफर करना ही पड़ेगा. या तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए कि यस आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिसके बिहाफ में आप, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर लाना जरूरी है सरकार को कि 2 साल की वो पार्टी टैक्स कंप्लायंट थी कि नहीं थी. जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके नहीं आ सकती है, सरकार इस प्रोविजंस को लागू नहीं कर सकती. सो ये प्रोविजंस डेफर हो गई होंगी. अभी जो इनकम टैक्स का पोर्टल आएगा उसमें आपको लगता है ये फंक्शनैलिटी मिल जाएगा कि कौन? आई डोंट थिंक सो. इट्स अ फार फेच्ड. अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा इनकम टैक्स में. नहीं, अभी नहीं हो रहा है, टैब पूरा खाली है. इनको अल्टीमेटली ये लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे यू हैव टू ब्रिंग दिस सॉफ्टवेयर ऑन डे 1, बिकॉज डे 1 हमको मालूम पड़ना चाहिए कि उसने बंदा टैक्स कंप्लायंट है कि नहीं है. सिंपली सपोज का नहीं है, बंदे का कितना TDS TCS कटा है वो भी एग्जैक्टली वो भी मालूम पड़ना चाहिए. गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, बिकॉज़ उसका 50,000 है कि नहीं है, तो ये बहुत डिफिकल्ट है.
ये बहुत डिफिकल्ट है, एंड वी कैन नॉट सोलली रिलाई। ठीक है, अपने को डिक्लेरेशन अगर बाहर दे दिया, नहीं डिक्लेरेशन का क्या है, क्योंकि इसमें तो कहीं सेक्शन में डिक्लेरेशन नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली 194 डिक्लेरेशन का कोई वजूद नहीं है वैसे। वो 10 गाड़ी का डिक्लेरेशन के लिए सेक्शन में लिखा कि आप गाड़ी का डिक्लेरेशन दे दो। हाँ राइट, सेक्शन में तो डिक्लेरेशन कुछ लिखा ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसमें डिक्लेरेशन की बात नहीं है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। और साथ में 206AA में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसका पैन नंबर इनवैलिड है तो इट विल बी डीम्ड कि उसका पैन नंबर आपके पास था ही नहीं। सो बेसिकली द बिजनेसमैन के ऊपर में ये भी ओनस डाल दिया कि वो सही पैन नंबर दिया कि नहीं दिया, वो भी आपको वेरीफाई करना है। उसने सही पैन नंबर दिया है कि नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, उसने रिटर्न्स फाइल किए हैं कि नहीं किए हैं। नंबर 3, उनकी टाइम लिमिट एक्सपायर होगी कि नहीं हुई है, बिकॉज अभी 2 साल शिफ्ट हो जाएगा आपका, सितंबर के बाद में 2 साल शिफ्ट हो जाएगा। असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21 के बाद में 20-21, 21-22 हो जाएंगे। फिर टीसीएस कितना है, तो इट्स अ हर्क्यूलियन टास्क, राइटली सेड बाय कमल जी। Sir, one thing more, this 50,000 limit is to seen by party to party or overall of the in aggregate. Overall. That is aggregate. How that has to be come from software only, I think. Exactly, वो सॉफ्टवेयर बताएगा, या आपको पार्टी का टीडीएस रिटर्न का कॉपी दे देगा, उससे मालूम पड़ जाएगा आपको। If the party gives you the copy of the TDS return, वो आपका 26AS उसका लेना पड़ेगा आपको। 26AS लेना पड़ेगा या TDS रिटर्न देना पड़ेगा, उसमें मालूम पड़ जाएगा उसका एग्रीगेट TDS। नहीं सुनील भाई ये कभी नहीं होगा कि कोई भी पार्टी 26AS और इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी दे, क्योंकि वो इसलिए नहीं देना चाहेगा, he doesn't want to disclose everything to the parties। ये कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। अपना स्क्रीनशॉट तो दे देगा अपने इनकम टैक्स के पोर्टल का, जैसे उसका पता लग जाएगा कौन सी डेट में रिटर्न फाइल किया है, वो खाली उसको स्क्रीनशॉट दे देगा, उसको साइन करके दे देगा। आशीष एग्जैक्टली वो फिजिबिलिटी वाली बात नहीं है। स्क्रीनशॉट इज एक माइनर अपने लोग बात कर रहे हैं आपस में, बट एक्चुअली में क्या होता है, इट इज नॉट फॉर दी, जिसको देना है वो दे देता है, जिसको नहीं देना है। But ultimately, the overall solution for the 135 crore people in India, वो जब तक पोर्टल में नहीं देगा, then the 100% solution। वो मैं वही पहले चीज बोला कि वो पोर्टल में उनको वो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन टू नो कि सामने वाला रिटर्न फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पे टीडीएस कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितना कट रहा है। Thanks। Seeing on the whole, I believe कि ये provisions will not be applicable from 1st July। टीसीएस को भी डेफर किया था 3 महीना, सो आई थिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाते इन लोगों को 3 महीना और लग जाएगा, तो 1 अक्टूबर से ये भी लागू हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट 1 अक्टूबर से होगा, 1 जुलाई से नहीं लग रहा है मुझे। और कुछ किसी को क्वेरीज है तो वी कैन कंक्लूड आई थिंक। राजेश जी। Yes, Ashish ji. Sir, we can conclude. I think so. It has been an excellent deliberation because every query has been answered. So we can have a. Thank you so much, Sunil Surana ji and Ashish Soni ji, for moderating the session and have a wonderful group discussion on a vast topic. Now I would like to Parkha Agrawal ji, Joint Secretary of DTPA, give a formal vote of thanks. Thank you, Rajesh Bhaiya. I thank on behalf of DTP and today's participants to CS Sunil Surana ji for sparing his valuable time and giving insight knowledge on TDS and TCS provisions. I thank all the participants for patient hearing. Thank you all. Thank you so much. Thanks all to the past participants. Thank you, Sunil. Thank you. Thank you, Kamal bhai, and thanks to all the past participants, office leaders, and the participants for joining the sessions. Thank you very much also.